Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class, students, we completed our chapter number 2, right? That is common, proper, and abstract noun from your grammar portion. We were done with the revision, and I hope that you are clear with all three types of noun. Now today students we are going to revise chapter number 6, that is nouns possession, from your English grammar book, that is Collins English Grammar, and it's page number 26. So students, please open your textbook and let's start our today's class. Now students, we have studied that there are different types of nouns, right? In the same way, one kind of noun which we are going to study today is possessive noun. What we are going to study? We are going to study possessive noun. As we have already done this chapter, so I hope that you remember what is possessive noun, right? And what does possession means? Possession का मतलब क्या होता है? Possession means belonging, मतलब कोई चीज़ किसको belong कर रही है वो दिखाता है, ठीक है? Or you can also say ownership. Ownership of something. Okay? किसको ये चीज़ बिलोंग करती है या चीज़ किसकी है ना, वो दिखाता है, उसको हम कहते हैं possessive noun. ठीक है? Circle the words which shows that something belongs to someone. है ना? हमको यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है? We have to circle the words which shows that something belongs to someone. So पहले में this is Tanmay's globe. So here we have to circle Tanmay's, right? It is showing that the globe belongs to Tanmay's. In the same way, this is Shiba's poster. So Shiba is considered to be the word which shows that the poster belongs to Shiba. And in the same way, third one, these are Tina's binoculars. So Tina's जो है, that shows us that binoculars belongs to Tina's. Okay. So nouns that shows ownership or belonging are called possessive noun. ठीक है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि nouns that shows ownership or belonging, मतलब जो nouns आपको दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, वो वाले nouns को हम possessive noun कहते हैं, right? It shows the ownership or belonging, and those nouns are called possessive noun. And how do we show the belonging, students? We show the belonging by using apostrophe after a noun. किसके पीछे लगाते हैं हम लोग? After a noun. Okay, you need to remember, हम apostrophe लगाते हैं possession दिखाने के लिए, ठीक है? Let's see the examples so that it gets clear to you all. These are Nina's toys. These are Nina's toys. This यहाँ पे ये जो bold में word है Nina's toys, that means what does it show? कि ये जो toys है वो किसको belong कर रहे हैं? नीना को, है ना? इसीलिए ये possession दिखाने के लिए कि ये toy नीना के है, हम यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं नीना के बाद और उसके बाद एस. ओके, सो दिस शोज दैट द टॉयज बिलोंग्स टू नीना. दीज आर नीनाज टॉयज. दैट मीन्स दैट दीज टॉयज बिलोंग्स टू नीना, राइट? दिस इज गर्व्स बाइसिकल. दिस इज गर्व्स बाइसिकल. यहाँ पे बाइसिकल किसको बिलोंग कर रही है? गर्व को, है ना? तो यहाँ पे हमें बाइसिकल का पोजेशन दिखाने के लिए हमने अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, ठीक है? दिस बाइसिकल बिलोंग्स टू गर्व. ओके, फॉर सिंगुलर नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस वी पुट अपोस्ट्रॉफी आफ्टर द वर्ड. नाउ यहाँ पर आपको ये जो रूल है वो बहुत अच्छे से समझना है कि अपोस्ट्रॉफी एस जो है
वो हम सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर नॉट एंडिंग इन एस, मतलब जिसके पीछे एस नहीं है ना। अगर नाउन आपका सिंगुलर होगा तो उसके पीछे एस नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो कि बॉय लिखा है मैंने और फिर मैंने बॉयज़ लिखा है, तो यहाँ पे बॉयज़, बॉय क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है और बॉयज़ जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे ये जो नाउन है दैट इज़ नॉट एंडिंग इन एस, राइट। सो इफ़ द वर्ड इज़ नॉट एंडिंग इन एस देन वी हैव टू पुट apostrophe s. What are we going to put? We are going to put apostrophe s after singular noun. Okay, after singular noun. ये एक रूल है, ठीक है। ऐसे और 3 रूल्स है विच वी नीड टू रिमेंबर। सो फर्स्ट वी विल सी दिस, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द हॉर्स टेल एंड टॉम्स बैट। यहाँ पे हॉर्स सिंगुलर है ना, हॉर्स इज सिंगुलर, और उसकी टेल वो पोजेशन दिखाने के लिए हमने लिखा हॉर्सेस टेल। एंड टॉम्स बैट, टॉम इज अगेन अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड इट इज सिंगुलर, तो उसका बैट है ये दिखाने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, मतलब ये बैट किसको बिलोंग कर रहा है, टॉम को बिलोंग कर रहा है, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर that for singular noun ending in s, what we are going to do, we put, sorry, for singular nouns not ending in s, जिसके अंदर s नहीं होता है, ठीक है। singular nouns जिसमें s नहीं होता है उसमें हमें apostrophe s लगाना है। लेकिन मान लो आपका नाउन सिंगुलर है लेकिन उसमें s भी है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है, एट दैट टाइम वी पुट ओनली अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द वर्ड। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट ओनली अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल जेम्स, देखो यहाँ पे जेम्स जो है वो एक पर्सन का नाम है ना, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, लेकिन ये एक ही आदमी है और वो सिंगुलर है ना। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एस लिखा हुआ है, वी ऑलरेडी हैव एस ओवर हियर, राइट। तो इसके बाद हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड अपॉस्ट्रोफी, ओके, क्योंकि एस तो है ही हमारे पास, है ना। सो जेम्स शर्ट, है ना, अपॉस्ट्रोफी ही लगाना है। अगर आपका नाउन सिंगुलर है और वो एंड होता है एस में, तब हमें सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है, उसके बाद वापस एस नहीं लगा सकते हो, ठीक है बच्चे। थॉमस, THOMAS। नाउ हियर स्टूडेंट्स, इफ यू सी इन दिस वर्ड विच इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, है ना, ये क्या है, पर्सन का नाम है जिसके अंदर ऑलरेडी एस प्रेजेंट है, वी ऑलरेडी हैव एस ओवर हियर। तो जब हमें पोजेशन दिखाना है कि ये जो हैट है वो थॉमस की है, तो हमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऐड करना है, थॉमस हैट, ओके। ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन का, आपको याद रखना है सिंगुलर नाउन जिसमें एस नहीं है, राइट, विच इज़ नॉट एंडिंग इन एस, उसमें हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। और अगर आपका सिंगुलर नाउन एस में एंड होता है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। नाउ द रूल फॉर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस वी यूज ओनली द अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द वर्ड। द प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस we use only the apostrophe after the noun। जो प्लूरल नाउन होते हैं जिसका एंडिंग एस में हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है। जैसे कि डॉग्स, डॉग सिंगुलर है ना, और डॉग्स क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे ऑलरेडी एस तो है ही हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड एस ओनली अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एस, ठीक है। डॉग्स है तो ऑलरेडी एस है, इसीलिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का एडिशन करना है। डॉग्स फूड एंड गर्ल्स ड्रेसेस, है ना, गर्ल्स ड्रेसेस मतलब बहुत सारी गर्ल्स हैं और उनके ड्रेसेस हैं,
तो गर्ल्स ड्रेसेस, गर्ल्स के अंदर भी हमने उसी तरह गर्ल्स लिखा हुआ था, इसीलिए हमने सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी ऐड किया हुआ है, ठीक है, गर्ल्स ड्रेसेस. नाउ फॉर द प्लूरल नाउन्स दैट आर नॉट एंडिंग इन एस. नॉर्मली हमारे जो प्लूरल नाउन्स होते हैं वो आपको पता होगा कि मोस्टली सारे प्लूरल नाउन्स जो होते हैं वो एस में एंड होते हैं. ज़्यादातर जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उसमें एस होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो प्लूरल होने के बावजूद उसमें एस नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हमें अपॉस्ट्रॉफी एस ही ऐड करना है, ठीक है. प्लूरल नाउन विच आर नॉट एंडिंग इन एस वी हैव टू पुट अपॉस्ट्रॉफी एस. जैसे कि चिल्ड्रंस स्टोरी. नाउ देखो, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है ना. चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, और चिल्ड्रन प्लूरल है. तो अभी जब चिल्ड्रन का कोई बिलोंगिंग है, जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रन स्टोरीज, सो चिल्ड्रंस के लिए हमें अपॉस्ट्रॉफी एस का एडिशन करना होगा, ठीक है. वी हैव टू ऐड अपॉस्ट्रॉफी एस, ओके. In the same way we have another word that is men's shirt. Now already this word is plural है ना. men जो है वो प्लूरल वर्ड है लेकिन उसमें s नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी ऐड एस करेंगे, s ऐड करेंगे, ओके. सो यू नीड टू रिमेंबर द 4 रूल्स, राइट. विच आर द 4 रूल्स. हम लोग को कहाँ अपॉस्ट्रॉफी s लगाना है वो हम देख लेते हैं. वेयर वी आर गोइंग टू पुट अपॉस्ट्रॉफी एस. ये हम कहाँ पर लगाएंगे, पहले तो सिंगुलर नाउन नॉट एंडिंग इन एस, है ना. कहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ऐड अपॉस्ट्रॉफी एस in singular nouns, right, not ending in s. मतलब उसका ending जो है उसमें s नहीं है. it does not have s in the singular noun. उसमें हमें apostrophe s ऐड करना है. और apostrophe s हम कहाँ ऐड करते हैं, where are we going to add apostrophe s? for plural nouns also जिसमें s नहीं है, राइट. प्लूरल नाउन्स जिसका एंडिंग एस से नहीं होता है ना, जिसका एंडिंग एस से नहीं होता है, ओके. एंड वी आर गोइंग टू जस्ट यूज अपॉस्ट्रॉफी फॉर सिंगुलर नाउन्स जिसके अंदर एस है ना, एंडिंग इन एस, जिसमें एस एंडिंग में होता है उसके लिए सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी. और वैसे ही हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस किसके लिए यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ अपॉस्ट्रॉफी एस फॉर प्लूरल नाउन्स ऑल्सो, ओनली अपॉस्ट्रॉफी व्हेन आवर प्लूरल नाउन्स आर एंडिंग इन एस, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अपॉस्ट्रॉफी एस कब यूज़ करना है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जिसके अंदर एस नहीं है. और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी कहाँ यूज़ करना है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जिसके अंदर एस है, राइट. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस रूल, ओके स्टूडेंट्स. You need to remember one more rule students which is given over here, okay. See this rule, grammar bite. Apostrophe is usually used with the names of living things. सिर्फ living things जो होते हैं मतलब humans है, animals है, उनके साथ हम लोग apostrophe s लगाते हैं. लेकिन अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हो तो उसके अंदर हमें ऑफ लगाना पड़ता है. द बैंक्स ऑफ रिवर, द हैंडल ऑफ नाइफ. हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं नाइफ्स हैंडल, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. वी कैन नॉट राइट दिस नाइफ्स हैंडल, दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग. यू हैव टू राइट हैंडल ऑफ द नाइफ, ओके. सो यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो पजेसिव नाउन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ
लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वही पजेसिव नाउन बन सकते हैं, क्योंकि उसमें ही हम लोग अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी ऐड कर सकते हैं। ओके, चलो अभी एक्सरसाइज देख लेते हैं। लेट्स सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस आफ्टर द नाउन्स। वी नीड टू सी कि अगर आपका नाउन जो है वो उसके अंदर अगर एस है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना, और अगर एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना। द टेबल दैट बिलोंग्स टू कारपेंटर, तो क्या होगा? द कारपेंटर्स टेबल, है ना, किसका टेबल है? कारपेंटर का। द बुक्स दैट बिलोंग टू राधा, तो यहाँ बुक्स किसकी है? राधा की है। नाउ राधा इज सिंगुलर, सो वी आर गोइंग टू राइट राधाज बुक्स। ओके, थर्ड वन, द कार दैट बिलोंग्स टू रिनी, द कार दैट बिलोंग्स टू रिनी। सो यहाँ पे कार किसको बिलोंग कर रही है स्टूडेंट्स? It is belonging to Rini, and as it is singular without s, we are going to add apostrophe s. Rini's car. The pens that belongs to the teacher, यहाँ पे the pens that belongs to the teacher, so the teacher's pens, है ना, the teacher's pens. Next one, the umbrella that belongs to Mr. Das, the umbrella that belongs to Mr. Das, मतलब किसकी है अम्ब्रेला? मिस्टर दास की है। यहाँ पे देखो अभी मिस्टर दास जो है वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन दास के अंदर लास्ट लेटर एस है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें अपोस्ट्रोफी ऐड करना है। Mr. Das umbrella. Okay, Mr. Das's umbrella. Next one, the hats that belong to the people, the hats that belong to the people. किसको belong कर रही है hats? It is belonging to the people. So the people's hats. Okay, the people's hats. Now let's see next one. The mug that belongs to my brother, the mug that belongs to my brother. So here students, my brother. Now your brother जो है वो सिंगुलर नाउन है और एस नहीं है उसमें, है ना, तो हमने क्या ऐड किया? अपोस्ट्रोफी एस। My brother's mug. Okay, let's see last one. The cushion that belongs to my grandmother, the cushion that belongs to my grandmother. So here students, what are we going to write? My grandmother's. Now यहाँ पे grandmother जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए, और एस भी नहीं है उसमें, तो हम क्या ऐड करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस। My grandmother's cushion. Okay, clear students? Exercise A. Now let's move on to exercise B. Put apostrophes in the correct places and rewrite the phrases. Now इसमें students आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो belonging है ना, जो belonging है, मतलब एक है आपका possessive noun और दूसरा क्या दिखा रहा है कि वो कौन सी चीज़ पजेस कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो पजेशन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। पजेसिव नाउन के अंदर आप अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस, ये दोनों में से क्या लगाओगे वो किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द थिंग विच इज़ बिलोंगिंग टू दैट नाउन। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अभी जैसे पहला वाला है द डक्स फीट, नाउ हियर फीट इज़ प्लूरल, लेकिन फीट जो होता है वो एक पूरा पैर होता है, राइट? इट्स अ पैर, PAIR,
PAIR पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डक है उसको अगर हम सिंगुलर काउंट करते हैं, राइट, फीट जो है वो किसके है, एक डक के है। सो वी आर गोइंग टू राइट द डक्स फीट, मतलब के और एस के बीच में, मतलब अपोस्ट्रॉफी एस से पहले डालना है, ठीक है। सेकेंड वन इज कार्स हेडलाइट्स। नाउ योर स्टूडेंट्स, कार्स हेडलाइट्स, हेडलाइट्स क्या है, प्लूरल है ना, मतलब कार्स भी प्लूरल होना चाहिए, है ना, क्योंकि हेडलाइट्स बहुत सारी है तो कार्स भी बहुत सारी है। तो यहाँ पर हमें अपोस्ट्रॉफी कहाँ लगाना पड़ेगा, आफ्टर एस, है ना, क्योंकि कार्स यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल है ना, कार्स इज प्लूरल एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट अपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, गर्ल्स ड्रेसेस। हियर अगेन गर्ल्स ड्रेसेस, ये आपका ड्रेसेस जो है वो आपका प्लूरल बिलोंगिंग है ना, गर्ल्स ड्रेसेस। सो योर ड्रेसेस इज प्लूरल, तो बिलोंगिंग भी किसकी होगी, गर्ल्स की, मतलब गर्ल्स इज ऑल्सो प्लूरल। तो यहाँ पर हमें कहाँ रखना पड़ेगा अपोस्ट्रॉफी, वी आर गोइंग टू पुट अपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो प्लूरल है जिसमें ऑलरेडी एस प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। फिर है बर्ड्स नेस्ट्स, यहाँ पर जो नेस्ट है, बिलोंगिंग है, वो भी प्लूरल है, तो जिसको बिलोंग कर रहा होगा वो भी प्लूरल ही होगा, इसीलिए बर्ड्स आपका प्लूरल नाउन है जिसमें एस प्रेजेंट है, तो हम अपोस्ट्रॉफी उसके बाद लगाएंगे, ठीक है, बर्ड्स नेस्ट्स। नेक्स्ट वन, द हंटर्स वेपन। नाउ हियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू नोटिस, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वेपन के बारे में, है ना, और यहाँ पे ये जो वेपन है वो सिंगुलर है, मतलब ये वेपन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एक हंटर को, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट अपोस्ट्रॉफी ओवर हियर, ठीक है, द हंटर्स वेपन। Okay, the next one is the baker's bread. Now normally student, bread जो होता है वो uncountable है ना, bread जो होता है वो uncountable होता है, that means it we cannot consider it as a singular also, and we have to consider it as a singular because we cannot count it, वो उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो स्टूडेंट्स, कि हमारा जो आर्टिकल है द, वो हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ ही लगा सकते हैं, मतलब जो हमारा सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ ही हम ध लगाएंगे। अगर हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है देन वी डू नॉट पुट ध अलॉन्ग विथ इट, ओके, यू नीड टू मेक आउट दैट डिफरेंस ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पे द बेकर्स ब्रेड, तो यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस से पहले लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन, मतलब बेकर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और उसके बारे में बात हो रही है। इफ़ यू नोटिस ओवर हियर स्टूडेंट्स, देखो जैसे कार्स, गर्ल्स, बर्ड्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस, अभी ये सारा क्या है, प्लूरल है ना, इसीलिए उसके साथ ध का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब आर्टिकल नहीं यूज़ किया है। लेकिन बाकी के जो है, जैसे द डक्स फीट, द हंटर्स वेपन, द बेकर्स ब्रेड, ये तीन जो है उसमें मतलब ध यूज़ हुआ है ना, तो वो जिसमें ध यूज़ हुआ है वो आपका सिंगुलर नाउन है, ओके। लेट्स सी सेवेंथ वन, स्टूडेंट्स सीट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स सीट्स, नाउ हियर द सीट्स इज प्लूरल, है ना, तो ये सीट्स किसको बिलोंग कर रही होगी, स्टूडेंट्स को, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो हमें स्टूडेंट्स को भी प्लूरल ही कंसिडर करना है, इसीलिए हम अपोस्ट्रॉफी एस के बाद लगाएंगे, ओके। इन द सिमिलर वे चिल्ड्रंस बुक्स, देखो अभी चिल्ड्रन जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है ना, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, और बुक्स जो है वो भी प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें कहाँ लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रॉफी, एस के बाद या एस के पहले, यहाँ पर हम एस से पहले लगाएंगे अपोस्ट्रॉफी, एंड क्यों, बिकॉज
Children is already plural, but it is not ending in S. That's why we are going to put apostrophe S over here. Okay? Let's see next exercise. Rewrite the sentences with apostrophe S or apostrophe correctly. आपको दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है, ये या फिर ये. जैसे पहला एग्जाम्पल है, these shirts belong to the boy. That means these are the boy's shirts. shirts जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, बॉय को, है ना. तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है और उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस. द हैमर बिलोंग्स टू द कारपेंटर. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज द कारपेंटर्स हैमर. ओके, कारपेंटर्स हैमर, अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा. द डायमंड रिंग बिलोंग्स टू द प्रिंस. द डायमंड रिंग बिलोंग्स टू द प्रिंस. मतलब ये किसकी है, रिंग प्रिंस की है. इट इज़ द प्रिंसेस डायमंड रिंग. ओके, नेक्स्ट वन, दिस हैट बिलोंग्स टू द विजर्ड. मतलब ये हैट किसको बिलोंग कर रही है, विजर्ड को. दैट मीन्स दिस इज द wizard's hat. ठीक है, दिस इज द wizard's hat. This park is for children. This park is for children. Again, children is plural without s, इसीलिए यहाँ पर भी apostrophe s ही लगेगा. That means this is children's park. Okay, next one. This house belongs to her niece. This house belongs to her niece. That means this is her niece's house. Niece's house. This is her niece's house. Apostrophe and S. The garden belongs to my neighbor. So this is my neighbor's garden. This is my neighbor's garden. Okay, and last one, this factory is owned by Mr. Singh. This factory is owned by Mr. Singh. मतलब ये फैक्ट्री किसकी है, मिस्टर सिंह की है. That means this is Mr. Singh's factory. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है. यू हैव अंडरस्टूड कहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगाना है और कहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है. और आपको आपका पोजेशन भी देखना है, मतलब जो चीज़ जिसको बिलोंग करती है उसका भी ध्यान देना है, क्योंकि वो अगर सिंगुलर है तो आपका जो पॉजेसिव नाउन है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर वो जो पोजेशन है इफ़ दैट इज़ प्लूरल देन योर नाउन जो है पॉजेसिव नाउन है दैट वुड ऑल्सो बी प्लूरल. ओके, सो रिमेंबर द रूल्स रिलेटेड टू दिस, and if you have any doubt please let me know. Okay, thank you students.